अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। यस मैम। ओके, सो लास्ट लेक्चर नहीं हुआ था बिकॉज़ आई वाज ऑन लीव। अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस आप लोगों की एंड पे होगी। ड्यूरिंग द लेक्चर कोई क्वेश्चन हो आप मुझे बता सकते हैं ऑन चैट। सो इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्या थी, हमने उसकी डिटेल्स पढ़ी थी कि हाउ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज़ इन्वॉल्व इन डिफेंस एंड इन्फ्लेमेशन। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और एक्यूट उससे पहले हमने पढ़ी थी, जिसमें सारे साइटोकाइंस थे, मीडिएटर्स थे, ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आफ्टर इन्फ्लेमेशन क्या होता है? दैट इज़ टिश्यू रिपेयर एंड हीलिंग। Tissue repair refers to the restoration of tissue structure and function after injury. That can be regeneration, which is the replacement of injured parenchymal cells with the cells of the same type. Like अगर liver injury हुई है तो उसके cell regenerate करना शुरू कर देंगे with the new cells of the same hepatocyte cell. Or the second option is connective tissue or fibrous tissue replacement that leads to the scar formation. वहाँ पे fibrous tissue आएगा, collagen आएगा, new cells formation नहीं होगी. So there are two modes of tissue repair. It involves cell proliferation, differentiation and apoptosis. ठीक है, cell proliferate करेगा, cell division होगी, increase in the number of cells, and cell differentiation stem cell से होती है, that is including the erythroid formation, hematopoiesis, जैसे आपके macrophages और T cells बनते हैं, erythroids और RBCs, myogenesis के through cardiomyocytes और smooth muscle cells, neural cells and signaling beta cells. और जो structural cells होते हैं, these include chondrocytes and osteoblasts, which are the cells of the bones. So this is how cell differentiation is occurring, and in the end there is cell apoptosis, जो cells that are not required, जो extra cells हैं या जो necrotic cells होते हैं उनकी apoptotic cell death होती है. And we studied it in detail कि इसमें सेल श्रिंकेज है, पिक्नोसिस था, मेम्ब्रेन ब्लबिंग, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन विच वाज कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस एंड इन द एंड फेगोसाइटोसिस हो जाता है of the necrotic cells and the cells which were not required. Several types of cell proliferate during tissue repair, including the remnants of injured parenchymal cells, vascular endothelial cells proliferate करेंगे और at the site of injury fibroblasts migrate and start proliferating. The proliferation of these cells is driven by proteins, which are the growth factors, hormones, and cytokines. Different factors थे उसमें, chemokines, TNF, alpha, etc. So, full regeneration or repair cannot occur without replacing the cells which have been lost due to injury or disease. इसमें cell cycle होगा जिसमें new cell formation होगी और cellular division होगी. Or if you can recall कि cell cycle में there were several steps including synthesis, mitosis, G1 phase, G2 and G0. ठीक है, जो माइटोसिस है उसके भी फर्दर 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. जी नॉट वाज द फेज जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही होती, डोरमेंट होता है सेल, एंड देन इट एंटर्स इनटू द G1 जहाँ पे ग्रोथ होगी एंड देयर इज़ प्रिपरेशन फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड सिंथेसिस, दैट इज़ एक्चुअली डीएनए सिंथेसिस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन, and in G2 preparation for mitosis and growth occurs. These are the phases. पहले क्या होगा, क्रोमोसोम एंड सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट एंड डीएनए इज कॉपीड, डिप्लॉयड सेल बनेगा. प्रोफेज में क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड अप एंड इन मेटाफेज
chromosome line up at the equator over the mitotic spindle. और जो एनाफेज होता है उसमें सिस्टर क्रोमाटिड्स दे आर pulled apart from each other. And the last one was telophase and cytokinesis. This may there is pinching of the cell in the middle and two cells are formed, two identical daughter cells, and that is a diploid cell. सो माइटोसिस में न्यूक्लियर डिवीजन हो रही होती है और जो माइटोटिक फेज होता है माइटोसिस इज न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन्स. So they keep on changing and entering into another phase, forming a cycle. Proliferative capacity of the tissue. So there are three types of tissues on the basis of ability of their parenchymal cells to undergo regeneration. लेबाइल होते हैं, स्टेबल टिश्यू और सेल्स हो सकते हैं एंड परमानेंट टिश्यू और सेल्स होते हैं. लेबाइल कौन से होते हैं? दीज आर द सेल दैट कंटिन्यू टू डिवाइड एंड रेप्लिकेट थ्रू आउट द लाइफ. जब भी इंजरी होगी या नहीं भी इंजरी होगी तब भी वो प्रोलिफरेट करते रहते हैं. एंड दीज आर द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द स्किन, जीआईटी, वजाइना एट्सेट्रा. स्टेबल सेल्स कौन से होंगे? जो नॉर्मली सेल डिवीजन में नहीं होंगे, ग्रोथ जो है दैट इज़ बीइंग सीज, बट जब कोई स्टिमुलस आएगा तब वो रेप्लिकेट करना शुरू करेंगे एंड प्रोलिफरेशन होगी. सो नॉर्मली दीज सेल्स रिमेन इन जी नॉट फेज वेयर द सेल इज डॉर्मेंट, but they have the capability to regenerate and proliferate under a specific stimulus. For example, when there is liver injury, so liver hepatocytes, they can proliferate and undergo the regeneration. So these are the stable cells. Similarly, cells of the kidney, small muscle cells, and vascular endothelium. Shaji, permanent cells are the cells that are never going to proliferate. Normal condition में हो या कोई stimulus है वो proliferate नहीं करेंगे because they're terminally differentiated, no further differentiation. और इसमें आपके एग्जांपल है नर्व सेल्स की. अगर नर्व सेल डेथ हो जाती है तो इट्स लाइक डेड. इसके बाद कोई प्रोलिफरेशन और रीजनरेशन के चांसेस नहीं होते. सिमिलरली कार्डियक सेल्स एंड स्केलेटल मसल सेल्स, और इनकी रिप्लेसमेंट स्कार टिश्यू से होगी, फाइब्रस टिश्यू से होगी, नॉट बाय द न्यू सेल्स. Extracellular matrix and cell matrix interaction. Extracellular matrix में क्या होता है? It is basically a network of spaces surrounding the tissue. अब उस space के अंदर three components होते हैं. Fibrous structural protein, जिसमें collagen and elastin fibers आएंगे. तो इसमें शो किया हुआ है कि ये सेल मेम्ब्रेन है और this is the space that is the extracellular matrix containing the collagen fiber, water hydrated gel including the proteoglycans and hyaluronic acids. This is a proteoglycan molecule, and this one is the proteoglycan complex. Adhesive glycoprotein में fibronectin होता है और laminin होता है. Healing by connective tissue repair, that is fibrosis formation, जिसमें fibroblast कैसे proliferate करेंगे और fibrosis और scar formation होगी. Tissue repair highly associated with tissue regeneration, replacing the injured or destroyed cells with the same cells. And it can only occur in labile and stable. हमने अभी पढ़े हैं कि labile जो होते हैं वो किसी भी time proliferate कर रहे हैं, they continue to proliferate for life and stable under a specific stimulus. And if the regeneration cannot occur, healing process via fibrosis formation, scar formation के through होगी जो permanent cells के अंदर हो रही होती है. Fibrosis is extensive deposition of collagen fibers, and it can occur in lungs, kidney, liver, etc. as a result of chronic inflammation or injury. So regeneration भी हो सकती है liver के अंदर, ठीक है. There was a stable cell और इसमें fibrosis भी हो सकता है अगर chronic inflammation चल रही है या फिर इंजरी इतनी सिवियर है कि रीजनरेशन कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है और इसमें साथ फाइब्रोसिस भी हो सकता है.
सो फाइब्रोसिस फॉर्मेशन इज़ अ सिक्वेंशियल प्रोसेस. इसमें एंजियोजेनेसिस होता है विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेसल्स. देन देयर इज़ इन ग्रोथ ऑफ द ग्रैनुलेशन टिश्यू. ग्रैनुलेशन टिश्यू इज़ हाईली वास्कुलर टिश्यू दैट contains several components. इसमें न्यू ब्लड वेसल्स भी होती हैं, कोलेजन फाइब्रोब्लास्ट भी होता है. वी विल सी इट फर्दर. Migration and proliferation of the fibroblast and deposition of extracellular matrix. Remodeling क्या होती है? In the end, remodeling, that is the maturation and reorganization of the fibrous tissue. Angiogenesis by two process, vasculogenesis and angiogenesis. जो vasculogenesis है, these are basically two same things. इसमें blood vessels ही बन रही होती हैं, but in vasculogenesis new blood vessels बन रही होती हैं from the angioblast, जो आपके new stem cells होते हैं उससे बनती है. But angiogenesis के अंदर capillary sprouts और capillary outgrowths बनती है from the already existing blood vessels. इसमें कोई new cells और angioblast नहीं आते. Angiogenesis is a process of new blood vessels developing from the existing, and it is critical in healing at the sites of injury in development of collateral circulation at sites of ischemia. जब ischemia होता है, blood flow किसी organ का compromise होता है, तो वहाँ पे collateral circulation हो जाती है. There are number of vessels there ताकि उसको properly supply दे सके, और उसमें actually angiogenesis हो रहा होता है. And in allowing the tumors to increase in size beyond the constraints of their original blood supply. आपके जो tumors होते हैं, अगर किसी पेशेंट में ट्यूमर है तो वो इतना ग्रो क्यों कर रहा होता है? क्योंकि उसको एंजियोजेनेसिस के थ्रू ब्लड सप्लाई मिल रहा है, एंड दे कैन आउट ग्रो इन देयर साइज एंड नंबर. अच्छा जी, एंजियोजेनेसिस के जो स्टेप्स हैं वो हम देख लेते हैं. अच्छा, ये एक तो ये है, दैट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ पेरिसाइट. पेरिसाइट्स क्या होते हैं? आपके एंडोथेलियल सेल्स के सराउंडिंग सेल्स होते हैं. दिस इज़ अ कैपिलरी ल्यूमेन. दिस इज़ द एंडोथेलियम. एक एंडोथेलियल सेल पड़ा हुआ है ये. और उसके बाद ये जो पर्पलिश है, दिस इज़ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट. और उसके जो है ऊपर होगा पेरीसाइट. सो एंडोथेलियम और पेरीसाइट के दरमियान जो पार्टीशन है, जो एक बैरियर है, दैट इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन. अच्छा जी. पहले जो है ब्लड वेसल दैट इज़ इन अ क्विसेंट फेज के, इट्स नॉट प्रोलिफरेटिंग, कोई चेंजेस नहीं है, डोमेंट है. उसके बाद क्या होगा? एंजियोजेनिक फैक्टर्स आएंगे और इसके स्टेप स्टार्ट होंगे. दिस इज़ द एंडोथेलियम. ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, और ये सेंटर में ये है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन. एंड आउटसाइड द बेसमेंट मेम्ब्रेन आर द पेरीसाइट्स, राइट. इनके दरमियान ये बैरियर है. एंजियोजेनिक फैक्टर्स क्या होंगे? जिसमें सबसे पहले वेजोडाइलेशन होगी. ब्लड वेसल इज गोइंग टू बी डायलेटेड अंडर द फैक्टर वेज एफ, विच इज़ वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर. ठीक है. इससे क्या होगा कि जो पेरीसाइट्स होते हैं, इसके बाद उनकी सेपरेशन हो जाएगी, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन था इसका ब्रेक डाउन हो चुका, दैट हैज़ बिन डिग्रेडेड. पेरीसाइट डिटैचमेंट हो रही है एंजियोपोइटिन के अंडर. Angiopoietin is a vascular growth factor. Most commonly angiopoietin type 1 and 2 use होते हैं, and its function or role is to mediate migration, adhesion and survival of endothelial cells. ठीक है जी. और बेसमेंट मेम्ब्रेन की डिग्रेडेशन होती है अंडर एमएमपीज. एमएमपीज आर मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस दैट डिग्रेड बोथ द मैट्रिक्स एंड नॉन मैट्रिक्स प्रोटीन. सो बेसमेंट मेम्ब्रेन की डिग्रेडेशन हो रही है. उसके बाद क्या होता है कि एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं मज़ीद यहाँ पर, और इसकी प्रोलिफरेशन होती है, और इसकी स्प्राउटिंग हो रही है एंडोथेलियल सेल्स की behind the leading tip of the cell. This is an endothelial cell sprouting. ठीक है. उसके बाद क्या होगा कि देयर इज़ पेरीसाइट रिक्रूटमेंट. पेरीसाइट भी प्रोलिफरेट करेंगे, रिक्रूट करेंगे, इलांगेशन ऑफ वास्कुलर स्टॉक होगी, बिकॉज इसमें कैपिलरी ल्यूमेन बनना होता है. सो दैट इज़ इलांगेटिंग टू फॉर्म अ कैपिलरी ल्यूमेन लाइक दिस. और अल्टीमेटली क्या होगा
कि there is a formation of new vessel, vasodilation, separation or detachment of pericytes, then there is degradation of the basement membrane and proliferation of the endothelium, capillary sprout बनेगा and then the formation of capillary lumen और new blood vessel की formation के बाद there is suppression of the angiogenesis because अब और ज़रूरत नहीं है तो अब उसको suppress करना भी ज़रूरी है. These are the steps जो आपको इस पूरी theory में मिलेंगे. You can read it. So these are the angioblast. Angioblast जो होते हैं वो hematopoiesis के through stem cells से बनते हैं और vascular genesis जो है वो किससे हो रहा था angioblast से. Under the factors VEGF, vascular endothelial growth factor type R2 है और R1 है. R2 proliferation कराता है और R1 जो है वो that is involved in tube formation, capillary lumen formation. Then vessels जो होती हैं उनकी maturation होती है. इसमें एंजियोपोइटिन इन्वॉल्व होता है लॉन्ग विद टाई टू रिसेप्टर्स. टाई रिसेप्टर्स क्या होते हैं बेसिकली टाई रिसेप्टर्स विद देयर एंजियोपोइटिन लाइगेंड्स एक्ट एज रेगुलेटर्स ऑफ एंजियोजेनेसिस. पेरीसाइट्स में टाई टू रिसेप्टर जो होते हैं जो स्प्राउटिंग को कंट्रोल करते हैं कैपिलरी स्प्राउटिंग को और दूसरा सप्रेशन भी करा रहे होते हैं. सो टाई टू रिसेप्टर्स हैव टू रोल्स बोथ द वास्कुलर स्टेबलाइजेशन एंड वास्कुलर एंजियोजेनेसिस और ये दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं. वास्कुलर स्टेबलाइजेशन में मैचुरेशन हो गया अब मजीद एंजियोजेनेसिस नहीं होगा. सो ये दोनों रोल टाई टू के थ्रू होता है. अब एंजियोजेनेसिस में हमने यही कहा था कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेसल से न्यू वेसल फॉर्मेशन होती है जिसमें वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इन्वॉल्व होता है. दैट कैन बी R1 और R2 और एंजियोपोइटिन वाया टाई टू रिसेप्टर जो कि स्टिमुलेटरी भी हो सकता है इनिबिटरी भी हो सकता है. मैचुरेशन एंड रिमॉडलिंग में भी ये चीज़ इन्वॉल्व है. यहाँ पे एक फैक्टर है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर PDGF and TGF beta is transforming growth factor that is involved in maturation and remodeling. Okay, next is deposition of connective tissue. Migration and proliferation of fibroblast and deposition of extracellular matrix क्योंकि extracellular matrix जो है यहाँ पे बनना होता है फाइब्रोब्लास्ट के थ्रू. अच्छा रिसेप्टर जो है वो यहाँ पे मैं बता रही थी कि टाई टू रिसेप्टर जिसका एंजियोजेनेसिस में क्या रोल होता है. जो टाई रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ हमेशा एंजियोपोइटिन लाइगेंड बाइंड करता है. एंजियोपोइटिन वाज अ वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर और उसके बाद इस टाई टू रिसेप्टर में यूजुअली पैरासाइट्स पे होता है. इसने दो काम करने हैं वास्कुलर एंजियोजेनेसिस भी करवाना है कैपिलरी स्प्राउटिंग करवानी है न्यू वेसल फॉर्मेशन भी करवानी है. ठीक है और दूसरा क्या करना है वास्कुलर स्टेबलाइजेशन करवानी है. स्टेबलाइजेशन का ये मतलब है मैचुरेशन एंड मॉडलिंग में टाई टू रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है. इसके बाद उसकी सप्रेशन करवाएगा ताकि मज़ीद एंजियोजेनेसिस ना हो वो स्टेबल रहे और उसकी रेगुलेशन होगी मज़ीद एंजियोजेनेसिस नहीं होगा. दीज आर टू अपोजिट फंक्शंस बट टाई टू रिसेप्टर्स दोनों चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं. इनका स्टिमुलेटरी फंक्शन भी होता है. यहाँ पे इनिबिटरी शो हुआ है इनिबिटरी भी होता है. अच्छा अब जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं इनकी माइग्रेशन होगी एंड प्रोलिफरेशन होगी एंड इट इज़ ड्राइव्ड बाय प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर PDGF. स्लाइड 28 क्या टॉपिक क्या है उस पर क्या समझ नहीं आ रही. माहम जाहिद माहम क्या समझ नहीं आई. चलें जब याद आ जाए तो बता दें. Collagen fiber synthesis by fibroblast is critical to the development of strength in a healing site. अच्छा जी स्लाइड का इशू है.
देखिए इसमें ये एंजियोब्लास्ट हैं, ठीक है जी। एंजियोब्लास्ट आपके डिराइव होते हैं फ्रॉम द स्टेम सेल्स। हेमाटोपोइसिस हो रहा होता है जो बेसिकली यूजुअली बोन मैरो के अंदर हो सकता है, ठीक है। वहाँ से एंजियोब्लास्ट डिफरेंट मोइटीज़ बनती हैं, लाइक एरिथ्रॉइड से आरबीसीज बन रहे थे, एंजियोब्लास्ट बन रहे थे। तो एंजियोब्लास्ट स्टेम सेल्स होते हैं जिनके थ्रू वास्कुलोजेनेसिस होना होता है, ठीक है। जिसमें हमने कहा था कि जो वास्कुलोजेनेसिस है वो हमेशा एंजियोब्लास्ट से होता है, और जो एंजियोजेनेसिस होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेसल जो कि वहाँ से न्यू वेसल्स बनती हैं, ठीक है। सो वास्कुलोजेनेसिस हुआ, इसके अंदर दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जिसके थ्रू क्या होगी, सेल्स इन एंजियोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन होगी, इनकी ग्रोथ होगी, सेल डिवीजन होगी, और ट्यूब फॉर्मेशन होती है R1 टाइप के अंदर, यानी कि कैपिलरी जो ल्यूमन है उसकी फॉर्मेशन होगी। एक जब न्यू वेसल्स मैच्योर वेसल्स बनती है तो उसके अंदर एक और फैक्टर इन्वॉल्व होता है विच इज़ एंजियोपोएटिन 1, जो एक्ट करता है टाई 2 रिसेप्टर पे। और मैं ये बता चुकी हूँ कि एंजियोपोएटिन 1 या 2 दोनों ही वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, और इसका जो रोल है वो है कि माइग्रेशन, एडीजन एंड सर्वाइवल ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, मैचुरेशन ऑफ द वेसल्स के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद जो अगर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेसल है और उससे न्यू वेसल्स के ये नेटवर्क बना दिया है उसने, तो डैट इज़ एंजियोजेनेसिस। और उसके लिए भी कोई स्टिमुलेटरी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं विच इज़ वेजेफ अगेन एंड एंजियोपोइटिन टाइप 2 जो टाई 2 रिसेप्टर पे एक्ट करता है। इधर यहाँ पे मेंशन है कि इनहिबिटरी सिग्नल है, तो इसके इट हैज़ बोथ फंक्शन, जो मैंने इतनी दफ़ा रिपीट किया है कि टाई 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं यूजुअली पैरासाइट्स में अगर होंगे तो इसमें क्या होगा कि इसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट भी है। इट विल प्रोमोट द एंजियोजेनेसिस एंड इट विल ऑल्सो सप्रेस द एंजियोजेनेसिस जब नहीं रिक्वायर्ड। जो सप्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, एंजियोजेनेसिस जितनी रिक्वायर्ड है वो हो जाएगी और उसके बाद उसने स्टॉप भी होना है। और उसके बाद क्या होगा, मैचुरेशन होगी, रीमॉडलिंग होगी, वो हम आगे देखेंगे। रिमॉडलिंग में क्या होगा कि न्यू स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी और स्टेबलाइजेशन हो जाएगी कि अब ये मेच्योर डिफरेंशिएटेड वेसल बन चुकी है। और उसकी मेंटेनेंस जो है और इसकी स्टिमुलेशन किसके थ्रू हो रही है, अगेन एंजियोपोइटिन 2 एक्टिंग ऑन टाई 2 रिसेप्टर्स। यहाँ पे ये इसको मज़ीद प्रोलिफरेट नहीं करने देगा। प्लेटलेट derived growth factor and transforming growth factors, so these are involved in maturation and remodeling of the vessels once they are formed. अच्छा जी, माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड डेपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ने बना होता है बेसिकली फाइब्रोब्लास्ट से, ठीक है। और फाइब्रोब्लास्ट ने माइग्रेट एंड प्रोलिफरेट करना है बाय अ फैक्टर विच इज़ द प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर PDGF। और यही फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जो कोलेजन की फॉर्मेशन करते हैं, बिकॉज कोलेजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर the development of strength in a healing site, and it takes about 3 to 5 days or it may continue to several weeks. उसके बाद ग्रैनुलेशन टिश्यू आता है जिसमें एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के प्रोसेस में आएगा। ग्रैनुलेशन टिश्यू इज़ हाईली वास्कुलराइज्ड टिश्यू और इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ स्कार टिश्यू। हम आगे देखते हैं कैसे। Granulation tissue at the site of injury area highly vascularized है and it composed of three components. Newly formed capillaries जो angiogenesis आपका हुआ था, इसमें new formed capillaries present होगी, फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन हो रही है वहाँ पे, एंड थर्ड वन इज़ रेजिडुअल इन्फ्लेमेटरी सेल्स। जब इंजरी होती है तो सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन ही हो रही थी ना, उसके बाद रिपेयर स्टार्ट हुआ, न्यू ब्लड वेसल्स बनना शुरू हुई, और उसके बाद क्या हुआ, फाइब्रोब्लास्ट ने आके माइग्रेट करना शुरू कर दिया। तो ग्रैनुलेशन टिश्यू के अंदर बेसिकली ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द ग्रोथ स्टिमुलेटरी एंड इनहिबिटरी, दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी इसमें वास्कुलर एंडोथेलियल सेल्स ग्रोथ फैक्टर, वेजएफ एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। एडिमेटस अपीयरेंस होती है ग्रैनुलेशन टिश्यू की क्योंकि न्यूली फॉर्म वेसल्स होती हैं, अभी मेच्योर हो रही होती हैं, कुछ नहीं हुई भी होती हैं, सो देयर इज लीकिंग ऑफ द न्यू ब्लड वेसल्स जिसकी वजह से एडिमेटस अपीयरेंस आती है, एडीमा होता है। दिस इज़ अ ग्रैनुलेशन टिश्यू जो कि पिंकिश सी अपीयरेंस है, एंजियोजेनेसिस भी है इसमें, फाइब्रोब्लास्ट भी बन रहे हैं और इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी हैं, रेडिश अपीयरेंस आती है इनकी।
Grossly granulation tissue appears soft, pink and granular and in light microscopy इसमें फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे. ठीक है जी, फाइब्रोब्लास्ट पड़े हुए हैं. एंड न्यू थिन वॉल्ड कैपिलरीज होंगी, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे इन अ लूज एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स विद एडीमा. कुछ फ्लूइड एक्सुडेट कर जाएगा इसमें. Fibroblasts divide and they secrete the collagen and eventually it results in fibrosis with connective tissue matrix. ये हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है ग्रैनुलेशन टिश्यू की जिसमें न्यूमरस न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन हो रही है. देयर आर नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स and fibroblasts and inflammatory cells. What is the role of granulation tissue? इसका फ़ायदा क्या है? एंटी इन्फेक्शन है. फर्दर अगर वहाँ पे ग्रानुलेशन नहीं हो रही, हीलिंग नहीं हो रही तो फर्दर इन्फेक्शन हो सकता है, उसको प्रिवेंट करेगी. वूंड सरफेस को प्रोटेक्ट करेगी. और वहाँ पे अगर इंजरी हो गई है, लॉस ऑफ टिश्यू है, लॉस ऑफ सेल्स है, तो वहाँ पे फिलिंग होगी इन द इंसिजन और द वूंड एंड एनी डिफेक्ट ऑफ द टिश्यू. तो जो नॉर्मल हीलिंग होती है वो उसको फिल अप कर देगी स्पेस को. एंड इट ऑल्सो रिप्लेसेस द नेक्रोटिक टिश्यू. और इफ्यूजन, वही एडीमा जो हम कह रहे थे, इसमें इफ्यूजन होती है, फ्लूइड बाहर आता है, तो उसको भी ये रिप्लेस करेगी. जो ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन एक्सुडेट हो रहा था उसको भी रिप्लेस करेगी और इट सेल्फ भी एडीमा कॉज करती है. और अगर कोई फॉरेन बॉडी है, कोई माइक्रोब है, उन सारी डेड टिश्यूज़ को, फॉरेन बॉडीज़ को, फॉरेन पैथोजेंस को रिमूव करेगी, रिप्लेस करेगी. Maturation and reorganization of the fibrous tissue, that is the remodeling. अब ये प्रोग्रेसिवली क्या होगा, जो ग्रानुलेशन टिश्यू बनता है उसमें फाइब्रोब्लास्ट आए थे जिन्होंने प्रोलिफरेट करना था और कोलेजन बनाना था. जो यंग स्कार टिश्यू होता है जिसको अभी इतना टाइम नहीं हुआ होता, उसके अंदर कोलेजन फाइबर होगा और साथ मॉडरेट नंबर ऑफ न्यू वेसल्स होंगी और फाइब्रोब्लास्ट होगा. बट एज दिस स्कार मेच्योर्स, जैसे टाइम गुजरता जाएगा, कोलेजन ज़्यादा होता जाएगा इन अमाउंट एंड द स्कार बिकम लेस सेलुलर एंड लेस वास्कुलर. वास्कुलैरिटी कम होना शुरू हो जाएगी और कोलेजन ज़्यादा है क्योंकि अब उसने स्कार बनाना है, फाइब्रोसिस करना है. Some of the fibroblasts also require features of smooth muscle cells, including the presence of actin filaments, and these are called as myofibroblasts. So this is a scar tissue जिसमें dense collagen is present और इसके अंदर फाइब्रोसाइट्स पड़े हुए हैं. स्कैटर्ड फाइब्रोब्लास्ट हैं एंड स्पार्स वेसल्स, स्कैटर्ड वेसल्स होती हैं इसके अंदर जो न्यू ब्लड वेसल्स हैं, लाइक दिस. What is the advantage of a scar? It provides a resilient permanent patch. Resilient is the tissue जो recover हुआ हुआ होता है, newly formed है, उसको एक permanent patch देगी, एक covering देगी और strength देगी. It provides a tensile strength and can keep the reproductive site solid होगी. Remodeling of connective tissue. The outcome of the repair process is influenced by a balance between synthesis and degradation of the extracellular matrix proteins. So synthesis भी हो रहा है लेकिन degradation भी हो रही है. कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए, एक बैलेंस चाहिए होता है. जैसे एंजियोजेनेसिस भी हो रहा था, एंजियोजेनेसिस फिर suppress भी हो रहा था. After its deposition, the connective tissue in the scar continues to be modified and remodeled. Degradation of the collagens and other extracellular matrix component is accomplished by matrix metalloproteinases. और ये क्या करते थे, डिग्रेड कर देते हैं मैट्रिक्स एंड नॉन मैट्रिक्स प्रोटीन्स को. एंड उनको हम मेटालोप्रोटीनेजेस इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन मेटल आयंस जिंक फॉर देयर एक्टिविटी. So this is the process of scar formation. Normal tissue present है. अब यहाँ पे this is the area of the injury. यहाँ पे inflammation हुई, inflammatory cells जो है वहाँ पे neutrophils etc. proliferate करना शुरू हो गए, migrate किया, ये blood vessels पड़ी हुई हैं, ब्लड वेसल्स की स्प्राउटिंग हुई, एंजियोजेनेसिस शुरू हो गया यहाँ पे. दीज आर द न्यूट्रोफिल्स और फाइब्रोब्लास्ट भी आ गए हैं. सो बेसिकली दैट इज़ अ ग्रैनुलेशन टिश्यू जिसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट भी थे, उसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी थे और उसमें न्यू ब्लड वेसल्स भी थी. एंड फाइनली क्या होगा, कोलेजन ज़्यादा होता जाएगा,
ठीक है, ब्लड वेसल्स कम हो जाएंगी, इन्फ्लेमेटरी जो सेल्स थे वो रिमूव हो गए हैं, उनका नेक्रोसिस हो गया है, और ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ को रिप्लेस कर चुका है, जो नया फाइब्रोसिस होगा, स्कार फॉर्मेशन हो जाएंगी, दैट इज़ मोस्टली कंटेनिंग of the fibrous tissue of the collagen, and it is least vascular and containing less of the fibroblast. अच्छा, अब फैक्टर्स कौन से हैं दैट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द टिश्यू रिपेयर, जो टिश्यू रिपेयर होने नहीं देंगे? एक्सटेंसिक हो सकते हैं इन्फेक्शंस, या इंट्रिंसिक टू द इंजर्ड टिश्यू, सिस्टेमिक और लोकल। Infection. It is clinically one of the most important causes of delay in the healing. Infection होगा, inflammation prolong हो जाएगी, और repair भी, healing भी prolong हो जाएगी. Diabetes जो है वो immunosuppression कराती है, और इसमें abnormal wound healing होंगी diabetic patients के अंदर। अगर कोई wound है like diabetic foot है या कोई भी wound होगी, उसकी healing जो है वो एक नॉर्मल पर्सन से टेक्स मोर टाइम। न्यूट्रिशनल स्टेटस हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट्स ऑन द रिपेयर। अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी है, विटामिन सी डेफिशिएंसी है, it is going to inhibit the collagen synthesis and it retards healing. अगर कोई पेशेंट स्टीरॉइड्स पे है, स्टीरॉइड ज़्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इनके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स होते हैं, और ये फाइब्रोसिस को डिमिनिश करता है, सो इट रिजल्ट इन वीकनेस ऑफ द स्कार, क्योंकि इसमें फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन कम हो जाती है, फाइब्रोसिस कम हो जाएगा। लास्ट इज मैकेनिकल फैक्टर्स। क्या हो सकते हैं? इफ़ देर इज़ इंक्रीज्ड लोकल प्रेशर और टॉर्जन, कहते हैं ट्विस्टिंग को, इट में कॉज द वुंड्स टू पुल अपार्ट, और dehisce, dehisce का मतलब होता है स्प्लिटिंग हो जाएगी उसकी, अगर कोई मैकेनिकल प्रेशर आ रहा है। पुअर परफ्यूजन है, अगर ब्लड सप्लाई ही उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में हो सकता है, डायबिटीज़ के अंदर हो सकता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हमने पढ़ा था कि यंग पेशेंट्स के अंदर इसमें क्या होती है कि वेसल जो है वो स्टिफ हो जाती है, और उसका जो ल्यूमेन होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। या अगर ऑब्स्ट्रक्टेड वीनस ड्रेनेज है, वीनस ड्रेनेज की कोई ऑब्स्ट्रक्शन है लाइक वेरिकोज वेन्स में है, या कोई थ्रोम्बस है, एम्बोलिज्म है, से ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई अगर नहीं आ रही है तो उसकी प्रॉपर हीलिंग नहीं हो सकती। फॉरेन बॉडीज, फॉर एग्जांपल फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टील, ग्लास और इवन बोन, वो भी उसके अंदर हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, हीलिंग नहीं होने देंगे प्रॉपरली। द टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ टिश्यू इंजरी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये कौन सा टिश्यू है जो रीजनरेटिव कैपेसिटी रखता है? अगर परमानेंट सेल है, नर्व सेल था या कार्डियोमायोसाइट्स थे, तो उसमें जस्ट फाइब्रोसिस तो होगा लेकिन उसमें रीजनरेशन नहीं हो सकती। और अगर इंजरी बहुत ज़्यादा है तो it can exceed the regenerative capacity of a cell. The location of injury and the character of the tissue in which the injury occurs are also important. Last one is liver regeneration. As I have told you earlier that liver के अंदर capacity होती है, and it has actually a remarkable capacity to regenerate. जब पार्शियल हेपेक्टमी होती है, पेक्टमी का मतलब यही है कि लिवर की पार्शियल रिसेक्शन हो जाती है, तो उसमें वो रीजनरेट करना शुरू कर देता है। दैट इज एक्टिंग वाया टू मैकेनिज्म। जो रिमेनिंग हेपेटोसाइट्स थे जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे उनकी प्रोलिफरेशन होगी, और दूसरा ये होता है कि नए हेपेटोसाइट्स आएंगे, रीपॉपुलेशन फ्रॉम प्रोजेनेटर सेल्स, न्यू हेपेटोसाइट्स विल फॉर्म एंड दे विल अंडरगो प्रोलिफरेशन। सो लिवर फेलियर की वेरियस कॉजेज हो सकती हैं। फल्मिनेंट हेपेटाइटिस जो है वो दैट इज़ दी सिवियर एंड सडन ऑनसेट ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लिवर कार्सिनोमा के अंदर लिवर सिरोसिस जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के अंदर होता है। सो लिवर फेलियर अगर हो जाए तो रिकवरी ऑफ दी लिवर फंक्शन का आप हेपेक्टेटमी कर देते हैं इसकी, और जो स्टेम सेल्स होते हैं उसमें सेवरल लीनियर डिफरेंशिएशन है, उसमें लिवर सेल्स भी बन रहे होते हैं, वो डिफरेंशिएट होकर मेच्योर हेपाटोसाइट्स बना देते हैं। दिस इज़ हाउ लिवर इज़ गोइंग टू रिकवर। अच्छा जी, दिस इज़ द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर।
क्विज नेक्स्ट मंथ होगा, आपको एग्जैक्ट डेट मैं बता दूंगी बहुत जल्दी। अभी मुझे भी थोड़ा कोऑर्डिनेट करना है, लेकिन होगा नेक्स्ट मंथ ही। नेक्स्ट मंथ का अपने माइंड में रखिएगा। जी, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें। मैम एक दफा स्कार टिश्यू का बता दें। एक मिनट। स्कार टिश्यू का क्या पूछना चाह रही हैं आप? सारा पूछना चाह रही हैं या ये मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ, दैट्स बेटर। देखिए, ये एक नॉर्मल टिश्यू है, इसमें कोई इंजरी नहीं हुई, ठीक है जी। अब जब इन्फेक्शन और इंजरी होगी तो इसमें सबसे पहले क्या होती है, हमने पहले स्टार्ट किया था इन्फ्लेमेशन से। वहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी या क्रॉनिक हो सकती है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कीमोकाइन, साइटोकाइंस, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, डब्ल्यू जो हैं वो आ रहे थे, ठीक है। वो यहाँ पे आके एट द साइट ऑफ इंजरी इनकी रिक्रूटमेंट होगी, ठीक है। सबसे पहले इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन के बाद देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू। ग्रैनुलेशन टिश्यू क्या होता है कि इसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स थे, इसके बाद इसमें एंजियोजेनेसिस शुरू हो जाएगा, न्यू ब्लड वेसल की फॉर्मेशन होगी, कैपिलरी स्प्राउटिंग होगी, और जब वेसल्स बन जाएंगी उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पे प्रोलिफरेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो तीन चीज़ें आपके पास थी। इन्फ्लेमेशन के बाद इन्फ्लेमेटरी सेल्स थे, एंजियोजेनेसिस हो गया था, और फिर उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट ने एंड पे आना था, ताकि वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू, कोलेजन टिश्यू हो जाए, इस क्योंकि कोलेजन टिश्यू से ही स्कार बनना होता है आपका, ठीक है। और स्कार फॉर्मेशन के अंदर इन द एंड होता क्या है कि ग्रैनुलेशन टिश्यू जिसके अंदर ब्लड वेसल्स भी बहुत ज़्यादा थी, इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिमूव हो जाएंगे अपोप्टोसिस के थ्रू, नेक्रोसिस के थ्रू, और वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू कॉज फाइब्रोसिस, फॉर्मेशन ऑफ द कोलेजन, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, जिसके अंदर अ फ्यू फाइब्रोब्लास्ट होंगे और अ फ्यू ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है। ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, इसमें बेसिकली कोलेजन इज लेड डाउन। और उसके लिए भी जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि फाइब्रोब्लास्ट की जो प्रोलिफरेशन हो रही थी, वो हम कह रहे थे प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स, दे आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और कोलेजन फाइबर जो है वो आपका 3 to 5 days में बन जाता है, बट इट मे टेक सेवरल वीक्स। सो देयर आर 3 steps कि यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेट करें हैं, कोलेजन फाइबर का सिंथेसिस जो फाइब्रोब्लास्ट से ही होना था, ग्रैनुलेशन टिश्यू बनना था, और ग्रैनुलेशन टिश्यू जो है वो फर्दर स्कार टिश्यू बना देगा। उसके कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए। एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम जो क्विज होगा वो एमसीक्यूज बेस होगा या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे उसमें? एमसीक्यूज होंगे ज़्यादा और एससीक्यू भी होगा, एक या दो हो सकते हैं। कि ज़्यादा 90% हमारा एमसीक्यूज बेस होगा? हाँ, मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा एमसीक्यूज हो, लेकिन एससीक्यू में रखूँगी। ओके मैम। और मैम मैंने आपको कहना था कि पिछली क्लास में ना मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मतलब मैंने हॉल लेक्चर लिया था, मे बी आपने रिकॉर्डिंग चेक कर ली हो, तो आपने मुझे कहा था कि मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूँगी तो देन आई विल मार्क यू प्रेजेंट। पिछला जो लास्ट थर्सडे का हुआ था? यस मैम, क्योंकि मंडे का तो हुआ ही नहीं था लेक्चर। आप ना मुझे मेल कर देना, मैं कंफर्म ओके कर मैम। लूँगी आपकी अटेंडेंस। मुझे अब याद नहीं है, एक हफ़्ता पहले का। ओके अस्सलाम मैम। वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मैंने आपसे पूछना था कि आप मेरे अटेंडेंस में मेरे नाम आ गए? हाँ जी, आगे असल में दो मारिया मंशा हैं, एक सेक्शन बी में है और एक जी में है, ठीक है। वो बीच में एक थी है, मुझे वो भी याद नहीं है कि कौन सी मेरे पास थी, दूसरी शायद आप ही थी जी वाली, जिनको मैंने ऐड कर दिया हुआ है। आपको जी आते जी हैं ना लिंक्स? जी मुझे लिंक्स आते हैं, आपने मुझे मेल भी की थी कि मैंने आपको ऐड कर दिया। बस ठीक है, आप ऐड हो गई हैं और आपकी अटेंडेंस भी हो रही है। ऑन कैंपस
क्या लिखा हुआ है इसमें? ऑन कैंपस जो है वो आप एचओडी से पूछें, क्योंकि अभी इन्होंने हमें यहाँ पे एक रूम दिया हुआ है जहाँ पे हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं कैंपस में आके भी। वैसे सर ये कह रहे थे कि बहुत जल्दी हमें क्लासरूम्स मिलेंगे, उसमें हाइब्रिड सिस्टम होगा, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी अटेंडिंग द लेक्चर ऑन कैंपस एंड हाफ विल बी ऑनलाइन। उसी का वेट हो रहा है। क्विज में लेक्चर अभी मैंने आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेनी है क्योंकि कोर्स तो कवर होगा नहीं, वो मैं आपको बताऊंगी वो 1 या 2 हफ्ते के अंदर। अभी तक तो 5 लेक्चर्स हो गए हैं, कोशिश करूंगी कि या तो इसको 10 पे कर लूँ एटलीस्ट, या फिर 8 लेक्चर्स। एलएमएस एलएमएस मेरा ना अभी खुद भी नहीं हुआ, उस पर कोर्स ही अपलोड नहीं हुआ उसी के लिए अभी मैं लगी हुई हूँ, क्योंकि वो होगा, ये लोग मुझे प्रोवाइड करेंगे तो मैं आगे कुछ कर सकूँगी, उसी पे ही होता है, तब तक हो जाएगा। मैम 10 लेक्चर का क्विज होगा? जितने आपके क्विज से पहले कवर हो जाएंगे उन सब का होगा। लेक्चर्स कम नहीं होंगे, आप साथ साथ पढ़ें, आपकी पैथो का कोर्स बहुत एक्सटेंसिव है और इस चीज़ पे कोई मेरे से आर्ग्यू नहीं करेगा। जी और कोई बात है? चलिए जी, मैं अटेंडेंस लगाने लगी हूँ। आई एम गोइंग टू म्यूट ऑल ऑफ यू, और मुझे चैट में बताएंगे आप लोग ताकि मैं आप लोगों की आईडीज़ देख सकूँ। हंजिला जाहिद, हंजिला जाहिद, मोहम्मद अहद अजमल, मोहम्मद अहद अजमल, कोमल, कोमल 1023, आबरू फातिमा, आप लोगों की कोई जीआर या सीआर नहीं बना हुआ अभी तक? कोई पहले से आ रहा हो? ठीक है आबरू, यूर प्रेजेंट। कोई सीआर या जीआर नहीं है? नहीं है आप लोगों का, कम्युनिकेट करने के लिए होना चाहिए। अच्छा, आमिना शकील प्रेजेंट, मोहम्मद अवैस दानिश, मोहम्मद अवैस दानिश, ओके, मोहम्मद अवैस दानिश 1033, सनिया अरशद, सनिया अरशद, उसामा अहमद, उसामा अहमद, आयशा कैसर प्रेजेंट, माहीन रऊफ, उसामा अहमद प्रेजेंट है, ओके, माहीन प्रेजेंट, तंजीला तारिक प्रेजेंट, बीनिश मजीद प्रेजेंट, तैयबा यासीन, तैयबा यासीन, नवेरा तजम्मुल, नवेरा, नवेरा और तैयबा यासीन कोई हैं, एग्जिस्ट करती भी हैं। आमना मंजूर, आमना मंजूर 1146 एब्सेंट, बिस्मा ताहिर, बिस्मा ताहिर प्रेजेंट, सायरा असलम, सायरा असलम प्रेजेंट, मोहम्मद शारून, मोहम्मद शारून एब्सेंट, जैन आसिफ, जैन आसिफ एब्सेंट, सैयद अमार अब्बास,
सैयद अमार अब्बास एब्सेंट। नूरुलैन फातिमा प्रेजेंट। शहताज बाजवा शहताज प्रेजेंट। किरण मुस्तफ़ा प्रेजेंट। मिसबा न्याजी एब्सेंट। वर्दा लियाकत प्रेजेंट। शहरियार 1296 शहरियार प्रेजेंट। अज़का ईमान एब्सेंट। मारिया हारून प्रेजेंट। निम्रा खान प्रेजेंट। फतीना ज़ुबैर प्रेजेंट। मोहम्मद तैमूर प्रेजेंट। मोहम्मद अली खान प्रेजेंट। सैयदा ऐमन खालिद प्रेजेंट। अमीना वहीद प्रेजेंट। मरियम अब्बास प्रेजेंट। समन जावेद प्रेजेंट। इकरा तबस्सुम प्रेजेंट। सैयद मोहम्मद हसन। वर्दा कासिम ठीक है जी प्रेजेंट है। वर्दा कासिम प्रेजेंट। अरमिश प्रेजेंट। नयाब फातिमा एब्सेंट। ज़ुबैर अहमद प्रेजेंट। नयाब प्रेजेंट है। आयशा जाहिद प्रेजेंट। मिनाल फातिमा ये भी एब्सेंट ही होती हैं। मिनाहिल गुल प्रेजेंट। अपनी अटेंडेंस पूरी कर लें फिर एंड पे खुद ही मसला होगा। इकरा जमील मिसबा न्याजी अच्छा जी आप मुझे मेल कर दीजिएगा। अच्छा मिनाहिल गुल हो गई हैं। इकरा जमील प्रेजेंट हैं। राबिया जमील प्रेजेंट। अब्दुल हनान अरशद प्रेजेंट। फातिमा अकमल एब्सेंट। सवेरा असलम प्रेजेंट। अब्दुल रज़ाक प्रेजेंट। मुबीना अब्दुल हफीज़ प्रेजेंट। अरीज फातिमा प्रेजेंट। बीनिश एब्सेंट है। नादिया तालिब प्रेजेंट। सैयद अमार कि मैंने पहले बोली थी। आप क्यों मुझे अच्छा आपकी मैंने एब्सेंट लगा दी है। ठीक है जी सैयद अमार प्रेजेंट। इसके बाद है महरीन कंवल प्रेजेंट। मुनज़्ज़ा ज़हीर प्रेजेंट। मनाहिल प्रेजेंट। खतीजा शकील
एब्सेंट। मरियम सैफ, मरियम प्रेजेंट। आमना फारूक 42028, आमना फारूक एब्सेंट। इकरा रहमान प्रेजेंट। खतीजा जफ़र, खतीजा जफ़र एब्सेंट। राजिया नईम अख्तर प्रेजेंट। रवान नदीम खान, रवान नदीम खान एब्सेंट। प्रेजेंट, ठीक है। रवान प्रेजेंट। ऑन अहमद सिद्दीकी प्रेजेंट। महनूर खान 2099 प्रेजेंट। फ़िज़ा नवीद, फ़िज़ा नवीद एब्सेंट। जाहिद हुसैन प्रेजेंट। हिना अब्बास प्रेजेंट। मासूमा ज़हरा प्रेजेंट। राबिया अली फ़िज़ा नवीद प्रेजेंट है, ठीक है। राबिया अली प्रेजेंट। जी हिना यू आर प्रेजेंट। उष्ना नस्सार, उष्ना एब्सेंट प्रेजेंट है। नूर फातिमा, हाँ जी फ़िज़ा हो गई है। नूर फातिमा एब्सेंट। तूबा साबिर, नूर फातिमा प्रेजेंट है। नूर फातिमा आपका आईडी नंबर क्या है? ये कोई और है, दो है, हाँ सही है। 136 नूर फातिमा, नहीं 136, ओके। अच्छा जो दो ना वो मुझे अपना आईडी नंबर भी साथ भेजा करें, मुझे नहीं याद रहता कि दो थी। ठीक है प्रेजेंट। तूबा साबिर प्रेजेंट। हिरा तबस्सुम प्रेजेंट। साइफा जफर प्रेजेंट। खुनैन फातिमा, सोबिया मंसूर, सोबिया मंसूर एब्सेंट। अरीज आसिफ, सोबिया प्रेजेंट है। अरीज आसिफ प्रेजेंट। जीनत अनवर प्रेजेंट। अनम असलम प्रेजेंट। जैनब सलीम, जैनब सलीम एब्सेंट। आयजा राशिद प्रेजेंट। आयशा जमशेद, आयशा सुमैया ठीक है। सादिका शहजादी, सादिका शहजादी एब्सेंट। रगीज़ा अनम, सादिका प्रेजेंट है, ठीक है। रगीज़ा अनम प्रेजेंट। महमूना रहमान, महमूना रहमान प्रेजेंट। निम्रा नौरीन, निम्रा नौरीन, निम्रा नौरीन एब्सेंट। सहर नदीम प्रेजेंट। आयशा इम्तियाज़, आयशा इम्तियाज़ एब्सेंट। इरम सईद, इरम सईद प्रेजेंट। एमन दिलशाद प्रेजेंट। सारा अनवर प्रेजेंट। माहम जाहिद, माहम जाहिद प्रेजेंट। सिमाब भट्ट, सिमाब प्रेजेंट। जैनिश फातिमा, जैनिश फातिमा
एब्सेंट। सना हबीब, सना हबीब, सैनिश प्रेजेंट है। सना हबीब प्रेजेंट। असद सैफ प्रेजेंट। फिजा इफ्तिखार, फिजा इफ्तिखार एब्सेंट। नूर फातिमा 2017 ये प्रेजेंट हैं। मारिया मंशा, फिजा इफ्तिखार प्रेजेंट। ओके, मारिया मंशा भी प्रेजेंट थी। मारिया मंशा किधर गई हैं? हाजरा तारिक, ठीक है मारिया यूर प्रेजेंट। हाजरा तारिक प्रेजेंट। बशर अशरफ प्रेजेंट। हादिया आबिद प्रेजेंट। हुसैन अहमद, हुसैन अहमद एब्सेंट। अमीना शकील, आमिना शकील सॉरी 1031। हाँ जी जैनिश लग गई आपकी। आमना शकील एब्सेंट। इकरा रफ़ीक, आमना प्रेजेंट है। अच्छा इकरा रफ़ीक सॉरी, इकरा रफ़ीक एब्सेंट। तहमीना, इकरा प्रेजेंट है, ठीक है जी। तहमीना तहमीना प्रेजेंट। कुनैन आई डोंट रिमेम्बर आपकी हुई है नहीं, मैं रीचेक कर लूँगी। का नाम मैंने नोट कर लिया। अच्छा जी, तहमीना प्रेजेंट है। ज़रवा ज़रवा आप भी मुझे कह रही थी ना कि पिछली अटेंडेंस का। हाँ आपकी प्रेजेंट लगी हुई है, ठीक है। अनम नौरीन प्रेजेंट। रिमशा, रिमशा एब्सेंट। गाजिया प्रेजेंट। माहम जुल्फ़िकार प्रेजेंट। रिदा ज़हरा प्रेजेंट। हिरा बिनते रज़ा, हिरा बिनते रज़ा एब्सेंट। कोई है जिसकी अटेंडेंस रह गई हो? कोई ऐसा बच्चा जिसकी अटेंडेंस ना हो रही हो या जिसको मेल का इशू हो रहा हो अभी भी? अच्छा मिसबा और कोनैन ये दो बच्चे। अच्छा कोनैन फातिमा आपकी अटेंडेंस लग गई हुई है। मिसबा न्याजी है वो मुझे मेल करेगी। खतीजा जफ़र, इलेक्ट्रिसिटी का इशू था। तहमीना आप पूरा नाम तो नहीं लिखा हुआ, 44052 हैं तो आपकी हो गई है। खतीजा आप भी मुझे मेल करेंगी। आई विल चेक द रिकॉर्डिंग। अगर आप 2-3 मिनट के लिए आई हैं तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। जिसकी अटेंडेंस मिस हो गई हो या नेट का इशू हो वो मुझे अपने आईडी के साथ मेल करेंगे। आई विल चेक एंड देन आई विल मार्क अटेंडेंस। ये कौन है? कुनैन। अच्छा आपको रिसीव नहीं होती। कुनैन आपने मुझे मेल करनी है और उसमें मुझे अपना इशू भी बताना है, ठीक है। फातिमा मैं ज़रवा नहीं, आपकी लग गई है प्रेजेंट, पिछली लगी हुई है। फातिमा अकमल फ़ोन के माइक का क्या इशू है? माइक तो आप यूज़ ही नहीं कर रहे यार।
ठीक है जी, जिसकी अटेंडेंस रहेगी है मुझे मेल करेगा with their IDs. I check and then I'll mark. और कुनैन का मेल का इशू है, वो भी मुझे मेल करेंगी। और कोई इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और क्विज़ का मैं आपको विद इन अ वीक इंशाल्लाह बता दूंगी कि क्या होगा। लेकिन नेक्स्ट मैंने आप लोगों को कैलेंडर भी भेजा था, दिसंबर के सेकंड वीक से 7 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ होगा क्विज़। तो अपनी तैयारी साथ साथ रखें। पैथो एक्सटेंसिव है, आई नो, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।